OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your math class. In the last class of the coordinate geometry, we discussed how to find the area of the triangle if the vertices are given. याद है आपको how to find the area of triangle? If vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3. Then area of triangle. The formula is half modulus x1. अगर x1 लिखा तो we will write next two ordinates y2 minus yt, but in the form of difference. सम नहीं लिखेंगे, difference लिखेंगे. First we written x1, now write x2. You will write y3 minus y1. In cyclic order we will write. And plus x3 लिखेंगे. Then we will take y coordinates y1 minus y2. This is formula to find the area of triangle. और हम लोग ने एक क्वेश्चन भी किया था. We are taking more example on it. Find the area of triangle whose vertices are -2, 1, 2, -3 and -4, -7. Three vertices of the triangle are given. We have to find the area. तो लास्ट टर्म पे भी इसी पे बेस्ड हम लोग ने क्वेश्चन किया था. लेट ए हो गया फर्स्ट पॉइंट विच इज -2, 1 एंड बी सेकेंड पॉइंट विच इज 2, -3 एंड सी थर्ड पॉइंट विच इज -4, -7. से दिस इज x1, y1. इसको कंपेयर करा रहे हैं x1, y1 से. इसको x2, y2, x3, y3. Area of triangle ABC. Area of triangle ABC. Half modulus of x1. What is formula? It is written, but आप अपने से लिखिए. x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Place the values. Half x1. What is x1? -2. y2 minus y3 -3 minus of -7 which is +7 plus x2. x2 is 2. Then y3 -7 minus y1 which is 1 plus x3 which is -4. y1 is 1 minus y2 which is -3 minus of -3 which is +3. Half 7 minus 3. 7 minus 3, 4 into -2 plus -8. 7 minus 3, it's a 4 into -2, -8. -7 minus 1, -8 into 2, -16. 3, 1, 4, 4 into -4, -16. चेक कीजिए कैलकुलेशन. 7 minus 3, 4 into -2, -8. -7 minus 1, -8 into 2, -16. 3, 1, 4, 4 into -4, it's a -16 again. 16, 16, 8, 32, 8, 40, -40 एक्चुअली, बट मॉडुलस के कारण से नेगेटिव इग्नोर हो जाएगा. आई टोल्ड यू कि ये कैलकुलेशन नेगेटिव भी आ सकते हैं. दैट्स वाई वी आर टेकिंग मॉडुलस, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होती है. तो -40 का मॉडुलस इट्स अ +40/2, 20 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 20 स्क्वायर यूनिट्स. वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल. Find the value of k if the area of triangle 2, 4, 3k and -2, 7 is 10 square units. एक अननोन है k की वैल्यू फाइंड करनी है. इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज वर्टिसेस, कितनी एरिया? 10 स्क्वायर यूनिट्स. सेम कॉन्सेप्ट यू विल अप्लाई. तो एरिया इज गिवन 10 स्क्वायर यूनिट्स. अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एरिया. half
x1, say this is x1, 2, y2 minus y3, k minus 7, plus x2, x2 is 3, y3 minus y1, 7 minus 4, plus x3, x3 is minus 2, y1 minus y2, 4 minus k, 4 minus k, and this area is 10. 2 को इधर भेजेंगे आप, यू विल गेट ट्रांसपोज 2, 1/2 को ट्रांसपोज करेंगे 10 into 2, 20. दिस इज मॉडुलस ऑफ 2k minus 14, 7 minus 4, 3 3 जा plus 9, minus 2 into 4 minus 8, minus 2 into minus 2k plus 2k. Modulus of this quantity 2k plus 2k, which is 4k. 2k plus 2k, 4k. Minus 14 plus 9, this is minus 5, minus 5 minus 8 minus 13 is equal to 20. फिर से चेक कीजिए, minus 14 and minus 8, it is minus 22, minus 22 plus 9 which is minus 13. अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं. If modulus x is a, we should write x is equal to plus minus a. Modulus x is a, we should write x is equal to plus minus a. तो modulus 4k minus 13 is 20. Then 4k minus 13 is plus minus 20. एक बार पॉजिटिव 20 लीजिए एंड एक बार नेगेटिव 20 लीजिए. तो 4k minus 13 is 20. What is the value of k? 33. 20 plus 13, 33 by 4. One possible value of k is 33 by 4 and take minus 20. तो minus 20 इधर आके plus 13. Minus 20 plus 13 which is minus 7. k is minus 7 by 4. Check कीजिए again. We have taken minus 20 और minus 13 इधर आके plus 13. तो 13 minus 20 which is minus 7. This is the value of 4k. तो k is minus 7 by 4. तो यहाँ पे आपके जब कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो आप नेगेटिव साइन इग्नोर नहीं करेंगे. एरिया निकालते समय नेगेटिव साइन इग्नोर करनी है. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के आर 33 by 4 आर minus 7 by 4. तो इस कंसेप्ट के क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में आते हैं कि एरिया हमें गिवन होती है, वी हैव टू फाइंड सम अननोन. यहां पे के कह दिया, क्या कुछ और भी कुछ बोल सकता है, लैम्डा म्यू एंड और भी कुछ वैल्यू हो सकती है. नाउ वी विल टेक द कंसेप्ट हाउ टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. Condition for collinearity of 3 points. x1 y1, x2 y2 and x3 y3. We have given 3 points. Coordinate of 3 points are given. Are these points collinear? Collinear means are they lie on the same line? अगर ये 3 पॉइंट से ए बी सी ए पॉइंट्स हैं, अगर एक ही लाइन पे मिल रहे हैं तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? नो. एक ही लाइन पे है तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी? 0. देयरफॉर कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी इज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 फॉर्म बाय द गिवन पॉइंट्स. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया. अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था उसको 0 से इक्वेट कर देंगे. यू विल गेट द कंसेप्ट टू फाइंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द 3 पॉइंट्स A 4 2, B 6 lambda and C -1 -2 are collinear. If these 3 points are collinear, तो what should be the value of lambda? Solution कैसे करेंगे? How to solve? Since A, B, C are collinear, therefore area of triangle ABC क्या होनी चाहिए? 0. कोलिनियर पॉइंट है, एरिया 0, हाफ. व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड एरिया? हाफ x1. x1 is 4,
y2 minus y3. Lambda minus of minus 2 means plus 2. Plus x2 which is 6. y3 minus y1. Minus 2 minus 2. Plus x3 which is minus 1. y1 minus y2. 2 minus lambda. This area must be 0. अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 0 it's a 0. Modulus 4 lambda plus 8 minus 2 minus 2 minus 4 into 6 minus 24. Minus 1 into 2 minus 2 minus 1 into minus lambda plus lambda. And this value is 0. So 4 lambda plus lambda, it's a 5 lambda. 8 2 which is 6 minus 24 plus 6 minus 18 is 0. फिर से कैलकुलेशन चेक कीजिए, 8 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18. अभी डिस्कस हुआ था मॉडुलस x अगर a है तो वी शुड राइट x इक्वल टू प्लस माइनस a. क्या लिखना चाहिए? x इक्वल टू प्लस माइनस a. तो 5 लैम्डा माइनस 18 इज प्लस माइनस 0 मीनिंगलेस होता है, नो नीड टू राइट प्लस माइनस 0. अगर a है अदर देन 0 है देन यू शुड राइट प्लस माइनस a. अगर 0 है तो प्लस माइनस 0 इट इज मीनिंगलेस. तो 5 lambda minus 18 is 0. Lambda is 18 by 5. So only one value of lambda exists which is 18 by 5. अगर lambda 18 by 5 ले ले तो ये 3 पॉइंट हमें कोलिनियर मिलेंगे. आई होप आपको कोलिनियरिटी कैसे अप्लाई करनी है समझ में आया. वी हैव टू टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल 0. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वेश्चन? Find the area of quadrilateral whose vertices are minus 4, minus 2, minus 3, minus 5, 3, minus 2 and 2, 3 taken in order. तो हमें कोई क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस इन ऑर्डर दी हैं. से द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD. ए के वर्टिस हैं माइनस 4, माइनस 2. बी के वर्टेक्स है माइनस 3, माइनस 5. सी 3, माइनस 2 एंड द वर्टिसेस ऑफ डी आर 2, 3. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. हमने क्वाड्रिलेटरल की एरिया तो नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी एरिया ऑफ ट्रायंगल. ज्वाइन एनी वन ऑफ द डायगोनल. कोई भी एक डायगोनल, डोंट ज्वाइन बोथ डायगोनल्स, ओनली वन डायगोनल वी हैव टू ज्वाइन. ज्वाइन AC. नाउ क्वाड्रिलेटरल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स. तो दोनों ट्रायंगल की एरिया ऐड करेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ ट्रायंगल यू नो, तो फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. एट द टू एरियाज यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. Half x1. x1 is minus 4. In bracket you will write y2 minus y3. Minus 5 minus of minus 2 which is plus 2. Then you will write plus x2 which is minus 3. y3 minus y1. So minus 2 and minus of minus 2 which is plus 2. Then you will write plus x3 which is 3. In bracket y1 minus y2, minus 2 minus of minus 5 which is plus 5. Half minus 5 plus 2 minus 3 minus 3 minus 4 plus 12. This is 0, no need to write. 5 minus 2, it's a 5 minus 2, 3, 3 3 ja 9. 21 by 2 square units. This is the area of triangle ABC. Now area of triangle ACD. Half x1, again it's a minus 4, y2 minus y3, minus 2 minus 3, plus x2 which is plus 3, y3 minus y1, 3 minus of minus 2 which is plus 2, and then plus x3 which is 2, y1 minus y2, minus 2 minus of minus 2 plus 2. Half 3 minus 2 minus 3 minus 5 into minus 4, it's a plus 20. 3 to 5, 5 3 ja 15 and this is 0 क्योंकि 2 से 2 cancel हो गया. Again check the calculation. Minus 2 minus 3 minus 5 minus 4 plus 20. 3 to 5, 5 3 are 15, 35 by 2 square units. This is the area of triangle ACD. Therefore, area of quadrilateral ABCD
which is the sum of the two triangles, sum of the area of two triangles. Area of first triangle is 21 by 2 plus 35 by 2, 40, 56, 516, 235, 56 by 2, which is 28 square units. This is the area of quadrilateral ABCD. आई होप आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट. जब भी क्वाड्रिलेटरल की एरिया कहे, डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स एंड एड द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. इफ द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर आर, टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 and 3, 2, find the other two vertices. Only we have given two vertices, opposite vertices of a square. This is a square. Consider this is a square. A, B, C, D. Say the vertices are given of A and this is the vertex of A. These are vertices of A, which is -1, 2 and C, 3, 2. Opposite vertex की बात हो रही है. How will you find the vertices of B and D? We have to find the vertices of B and D. Let the vertices of B and D are x1, y1 and x2, y2. Since ABCD is a square, therefore can we write AB is equal to BC? AB and BC are equal. Therefore AB square is equal to BC square. क्यों हम स्क्वायर लिख रहे हैं? बिकॉज ए बी डिस्टेंस फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे, दिस गिव्स इन द रूट, तो रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग कर ली. दिस इज x1 y1 एंड x2 y2. तो अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, तो टू फाइंड ए बी एंड बी सी, स्क्वायरिंग कर दी, अंडर रूट हट जाएगा. x1 माइनस ऑफ -1 विच इज +1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y1 माइनस 2 होल स्क्वायर. अंडर रूट हटा दी बिकॉज स्क्वायरिंग कर रही है हमने. सिमिलरली अप्लाई द फॉर्मूला फॉर बी सी, x1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर. y1 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है. x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 एंड स्क्वायर इधर भी एक्सपेंड कीजिए. x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9, x1 will get cancel, minus 6x1 इधर ट्रांसपोज कीजिए, 8x1 एंड 9 माइनस 1 8. x1 की वैल्यू आ गई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? इट्स अ 1. वैल्यू ऑफ x1 इज 1. ओनली हमें हमारे पास क्या निकला है? x1. सिमिलरली वी कैन फाइंड, सिमिलरली हम अप्लाई करें AD is equal to DC. Also we know that diagonal bisect each other. Midpoint of AC is midpoint of BD also. So midpoint of AC का midpoint x1 plus x2 by 2 minus 1 plus 3 by 2 comma 2 plus 2 by 2. What are the coordinates of midpoint? 3 minus 1, 2 by 2, 1, 2 plus 2 by 2, 1 comma 2. तो मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स सेम होंगे, 1 2. 1 2 इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ 1 2 is also midpoint of BD. Therefore, x1 plus x2 by 2, x1 plus x2 by 2, it is 1, and y1 plus y2 by 2, it's a 2. So, x1 plus x2 is 2, 2 1 जा 2, and x1 की वैल्यू कितनी मिली है? 1. तो 1 plus x2, 1 plus x2 is 1 plus x2 is 2, तो x2 is 1. तो x2 की वैल्यू भी 1 आई और x1 की वैल्यू भी 1 आई. यहां से क्या मिलेगा? y1 plus y2 is 4. तो हमारे पास ना तो y1 की वैल्यू है ना तो y2 की वैल्यू है. यहां x1 की वैल्यू थी तो हमने x2 भी निकाल लिया. अब हमारे पास एक y1 y2 में रिलेशन आया, बट वी हैव नीड ऑफ, क्योंकि दो अननोन है y1 y2, तो हमें दो रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, y1 plus y2 is 4.
वी हैव टू फाइंड वन मोर इक्वेशन इन y1 एंड y2। तो क्या कंसेप्ट अप्लाई करें कि एक y1 y2 में एक और रिलेशन आ जाए? वी हैव टू फाइंड वन मोर रिलेशन बिटवीन y1 एंड y2। एक रिलेशन तो है अपने पास, दो अननोन है तो दो रिलेशन या दो इक्वेशन होनी चाहिए। वी नो दैट द लेंथ ऑफ डायगोनल इन स्क्वायर एज वेल एज इन रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। तो BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC, therefore BD square is equal to AC square। BD by distance formula you can write, BD distance formula you can apply x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, and AC square again by distance formula 3 minus of minus 1, 3 plus 1 का square plus 2 minus 2 का whole square which is 0, this is 16, x1 x2 both are 1 and 1, so this is 0। क्यों 0 हुआ? x1 is 1, x2 is 1, 1 minus 1 is 0, plus y1 minus y2 whole square। तो y1 minus y2 की वैल्यू क्या आ गई? इट्स अ प्लस माइनस 4। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट की y1 minus y2 वी हैव टेकन 4 एंड y1 plus y2 हमारे पास आया था y1 plus y2 is again 4। solve these two equation you will get the y1 y2, y2 y2 कैंसिल होगा, 2y1 is 8, y1 is 4। अगर y1 4 आया तो y2 0 आ जाएगा, किसी में भी रख के देख लीजिए, 4 से 4 कटेगा। एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी y1 minus y2 is minus 4 while y1 plus y2 is 4। एट these two equation, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो y2, अगर y1 0 आया तो y2 क्या आ जाएगा? y2 is 4। Therefore अगर y1 अगर हमने 4 लिया, x1 कितना था? x1 and y1 both are 1, therefore vertices, other two vertices are x1 we have taken 1 and y1 we can take 4, और x1 अगर हमने 1 ले लिया और y1 0 ले ले, सिमिलरली y1 अगर 1 लेंगे तो फिर आपके पास x1 अब इफ यू टेक y1 1 तो y2 0 लेंगे तो 1 0, यानी यू विल गेट द सेम वर्टेक्स, और y1 1 लेंगे और y2 आप 4 लेंगे तो यू विल गेट द सेम वर्टेक्स। द अदर टू वर्टिसेस आर 1 4 एंड 1 0। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई। तो ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट्स अ वेरी स्कोरिंग वन। आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम न्यू कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।